Going to read complex analysis. Modulus of z is represented as a distance under root x square plus y square. It represents distance from origin, right? Z bar is x minus iota by add z plus z bar, then we get two real part, and z minus z bar is two imaginary part. I mean, separation additions में separation always greater, right? And addition separation is always greater and negative separation is always less than. So whatever the other side, we don't care about it. Just remember that in positive, separation is always greater. In negative, separation is always less than. Okay? Here one-sided positive separation, other side is combined negative. Which one is greater? Obviously separation of positives. One side negative combines and one side is negative separation. Which one is greater? The negative combines, because separation of negative is always lesser, right? One side is a positive one, the separation of negatives. Which one is greater? The combined form. Representation of z is r cos theta plus iota sin theta. Z is tan inverse y upon x, right? Tan theta by y upon x. And another representation e power iota theta equals to cos theta plus iota sin theta. That is confirmed. Cos theta plus iota sin theta equal to e power iota theta. So z can be represented as z is a distance, r e iota theta. R is the distance from origin under root x square plus y square, and that is angle, which is tan x equal to y upon x. It's exponential form of z. It is right z1 plus z2, then it to mean this is sum of two vectors z1 and z2. Additions, law of polygon. Here we want to find out z1 minus z2, so here is z1, here is z2, right? And now there is z minus z2 is in opposite direction of additive inverse, opposite direction of z2. So, and here is z1, so according to vector addition, where is z1 minus z2 is there, so this is in anti-clockwise direction, right? Argument property work as a log property, so this is equivalent, right? And here is a vector where there is z0, and this is a collinear vector z1 is there, and there is z2 vector. We want to find out the angle between them. Angle between them is argument of z2 to z0 and z1 to z0, right? If one term is common, if that angle we got 0 or pi, it means this value is purely real. When we get this value is purely real, it means PQRS are the collinear. This PQRS is collinear. PQ and RS is perpendicular. It means the angle between this is pi by 2. Plus minus pi by 2. It means this is purely imaginary. When we product the two complex numbers like z1 and z2, so उनकी टर्म्स पोलर फॉर्म भी कंबाइन हो जाती है. r1 r2 ये मॉड्यूलस हो जाएगा, और एंगल्स क्या हो जाएंगे? एडिशन, बिकॉज आर्ग्यूमेंट एक्ट एज अ लॉगरिथम फंक्शन एंड देयर वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इट, वी कैन एड इट. सो cos theta plus phi sin theta plus phi, right? And this is argument of z1 z2. What if we divide z1 z2, then r1 upon r2 cos theta minus phi plus iota sin, एंगल्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. फाइंड आउट द z की पावर n, देन मॉड्यूलस की पावर n, एंड थीटा इज मल्टीप्लाई बाय n, राइट? ऑल्सो वर्क एज अ लॉग प्रॉपर्टी. लॉग प्रॉपर्टी में कहते हैं पावर थीटा के आगे आ जाएगी. और जब z नॉट बराबर 0 है, देन आप इसका इन्वर्स अगर निकालना चाहते हो, हाउ टू फाइंड इट्स इन्वर्स? 1 बाय आर कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, राइट? मतलब कि जो पोलर फॉर्म है उसका तो साइन माइनस हो जाएगा बीच में, और आर की जगह हो जाएगा 1 अपॉन आर. यू नो द वैल्यू ऑफ 1, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आइटा बाई 2. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आइटा बाई 2. दिस इज अ ट्रायंगल
अगर इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही। Z1 Z2 ZQ का बराबर इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैन ऑल्सो राइट एज प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक वन Z1 Z2 Z2 से Z3 की जो डिस्टेंस है वो Z1 से Z3 से Z1 की डिस्टेंस का स्क्वायर है अगर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस Z की 1 से और -1 से अगर क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है, देयर आर टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स। एक रूल तो यहाँ पे ये है कि द 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 आर द कॉन्साइक्लिक, राइट, इफ इट इज़ प्योरली रियल। इन्वर्स पॉइंट ये कि एक सर्किल में मेरे पास सेंटर है, एक पी पॉइंट है जो रेडियस पे नहीं दे रखा और एक पॉइंट है क्यू जो पी के बाहर है। पी एंड क्यू आपस में इन्वर्स तब होंगे जब सी जो डिस्टेंस है सी पी और पी क्यू, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आर स्क्वायर के बराबर आ जाए। एंड सी पी एंड क्यू लाइन कॉलिनियर लाइन, सो हम बोलेंगे कि इन्वर्स पॉइंट्स। बेसिकली हमें पता है कि जेड बराबर क्या है आर, राइट, लेकिन स्क्वायर के दोनों साइड जेड स्क्वायर आर का, जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, जेड और जेड कॉम्प्लेक्स। देन हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं इन्वर्स पॉइंट में, मान लो कि यहाँ पे इन्वर्स है। देन व्हाट इज इन्वर्स पॉइंट इज आर स्क्वायर अपॉन जेड कॉम्प्लेक्स। इफ दिस सर्किल इज यूनिट सर्किल देन रेडियस इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द इन्वर्स पॉइंट ऑफ जेड is 1 upon Z bar, but it is only if the circle is unity, it means radius is 1. Always this represent a circle where the center is alpha and the radius is r. Z1 and Z2 are the inverse point, then Z1 is written as alpha is the center plus lambda e to power minus iota theta, that is variation, and inverse point is represented as r square lambda e to power iota theta. If this k is not equal to 1, then this system is represented as an inverse point. Stereographic projection circle into circle and straight line. नेबरहुड बेसिकली ये है कि जैसे ये दिया हुआ है तो ये बोल रहा है कि जेड का नेबरहुड क्या है। जेड का नेबरहुड है जिसमें रेडियस मान लिया इसको, और रेडियस से लेस बन रही है डिस्टेंस, ठीक है, जेड और जेड नॉट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से थोड़ी लेस है। तो ये बेसिकली ओपन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इस पॉइंट के अलावा जितने भी नंबर है वो सब इसके नेबरहुड में है, ठीक है। और जेड नॉट क्या होगा, इसका एक इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसको डिलीटेड नेबरहुड तब बोलते हैं कि जब उसके सारे नेबरहुड तो इस सर्कल के अंदर है बट वो पॉइंट ही नहीं है, मतलब जेड नॉट अगर इस सर्कल में नहीं तो ये इसका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। भाई इसको लिमिटेड पॉइंट तब बोलेंगे जब उसके डिलीटेड नेबरहुड में और उस सेट में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन हो। नॉट नेसेसरी कि जो हमने सेंटर माना है वो उस सेट में हो कि नहीं हो, लिमिट पॉइंट बार भी हो सकता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट बेसिकली लिमिट पॉइंट इज वेयर द सीक्वेंस इज कन्वर्जन, मतलब जहाँ पूरा फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है वही लिमिट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लिमिट लाई ऑन दैट फंक्शन, मतलब उस फंक्शन मतलब उसको मतलब है कि वो फंक्शन वहाँ तक अप्रोच कर रहा है। अब वो उस सेट में हो चाहे मत हो, पर वो जैसे कि यहाँ पे i पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर है। अब ये फंक्शन कभी ज़ीरो तो नहीं होगा बट इसकी जो लिमिट है वो हमेशा ज़ीरो के करीब आती जाएगी, जिसके करीब फंक्शन जा रहा है वो उसकी लिमिट है, भले वो सेट में है कि नहीं। जीरो इस सेट में नहीं लेकिन जीरो इसकी लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट इज़ ऑलवेज यूनिक, limit is always unique. Limit point are so many. Only difference between limit and limit point is limit is always unique. अब पूरा फंक्शन जहाँ कन्वर्ज हो रहा है वो आपका क्या है, लिमिट। और लिमिट पॉइंट है कि लिमिट पॉइंट काफ़ी सारे हो सकते हैं। इट नॉट नेसेसरी टू बी यूनिक बट इफ़ इट इज़ अ यूनिक दैन इट इज़ अ लिमिट। कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिमिट पॉइंट से मतलब है, या लिमिट से मतलब है उसका सेंटर। बहुत सारे लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब है उस
पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में काफ़ी सारे सर्कल्स हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जिनका पूरा एक नेबरहुड है। क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फॉर्म। मेरे को दिख ही रहा है कि जो ये है क्या डिनोट कर रहा है कि बाउंड्री भी है एंड ओपन भी है। तो इसका मतलब ये रेफर कर रहा है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल है तो वी नो द एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल इज, मतलब क्लोज इंटरवल में सारे के सारे लिमिट पॉइंट आ जाते हैं। मतलब कि क्लोज सेट से बाहर उस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर यहाँ क्लोज इंटरवल आ गया तो इसका मतलब कि में सेट के जो हर एक एलिमेंट है वो उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ये है कि जो भी सर्कल के अंदर इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट जो सर्कल बाहर है, बाउंड्री पॉइंट्स वो है जो बाउंड्री पे है, मतलब जिनमें कुछ नेबरहुड कॉमन आ रहे हैं और कुछ नेबरहुड कॉमन नहीं आ रहे। ड्राइव्ड सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट एंड क्लोजर सेट। अब ये सेट है क्लोजर है, मतलब कि इसमें सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट भी आ गए और इसमें सारे के सारे इसके एलिमेंट भी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पूरा नेबरहुड भी उसके अंदर है और सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी अगर उसके अंदर रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोजर सेट। क्लोज सेट उसको बोलेंगे जिसमें इंटीरियर पॉइंट भी है और बाउंड्री पॉइंट भी है। ओपन सेट ये है कि उसमें सारे इंटरवल नेबरहुड तो सारा है लेकिन उसमें बाउंड्री नहीं है। बेसिकली बाउंडेड सेट ये है, तो हम बोलते हैं कि ज़रूरी इट्स लाइक जैसे कोई मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि उस पूरा जो भी सर्कल है उसको कुछ ना कुछ कवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कोई भी फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे तो वो बाउंडेड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेट के अंदर ही लाई करे, वो सेट के बाहर भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन लगाया, मतलब नेबरहुड वाला साइन लगाया, बाउंड्री वाला साइन नहीं लगाया। तो मतलब ये है कि ओरिजिन जो इसकी डिस्टेंस है उसको कॉमन मान के, मतलब के रेडियस मान लो, और उससे कम रेडियस पे वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो सब उसके क्या हो जाएंगे, बाउंडेड टू के हो जाएंगे। इट सेट ये होता है कि आप किसी भी दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर सकते हो, कर्व में किसी भी बीच में डिस्कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। या फिर इसके दूसरे शब्दों में ये बोले कि यहाँ पे कोई भी ऐसे दो सेट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए जो जॉइंट हो, मतलब उसमें अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब कनेक्टेड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन टर्म आनी चाहिए। और ए यूनियन बी कभी भी ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे और भी पॉइंट होंगे ना। सेगमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ Z1 प्लस टी Z2 माइनस Z1। ठीक है, t 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो दो चीज़ें समझनी जरूरी है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन वो होता है कि जहाँ से देखो कुछ इनपुट पे हमें आउटपुट मिलता है, बेसिकली यही फंक्शन है। अगर मान लो कि दो एंडिंग इनपुट पे जहाँ से इनिशियल इनपुट एंड फाइनल इनपुट पे अगर मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ से चलना शुरू किया वहीं आके रुक गए, तो सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड। तो इसका मतलब है कि वो कैसा रीज़न हो गया, क्लोज्ड रीज़न। और अगर ऐसा होता है कि जब एफ ए नॉट इक्वल टू एफ पी है तो वो रीज़न क्या होता है, ओपन रीज़न। उसको डोमेन भी बोल लो चाहे ओपन रीज़न बोल लो, सेम बात है। कोई डेफिनेशन देख लो ओपन डोमेन की कि ए नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द डोमेन और ओपन रीजन। और क्लोजर ऑफ द ओपन रीजन और डोमेन इज कॉल्ड द क्लोज रीजन। हो गया कि उसके सारे एंड पॉइंट्स भी उसके अंदर आ गए और एंड पॉइंट आपस में इक्वल है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस तो वही है कि इनफाइनाइट मेनी टर्म्स जिस वैल्यू पे एक्यूमुलेट हो रही है वही लिमिट। यहाँ पे देख लो कि ये सारी जो जितने भी पॉइंट है, जितने पूरा फंक्शन है, फंक्शन अप्रोच कहाँ कर रहा है मेरा Z0 पे। Z0 क्या होगा, इसकी लिमिट। अगर Z0 यहाँ नहीं होता, इसके बाहर होता तो ये क्या हो जाता, तो हो सकता है ये पूरा इसका नेबरहुड है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, अगर Zn कन्वर्स कर रहा है x0 प्लस आईटा y0 तो वो ओनली तभी पॉसिबल है जब xn तो x0 तक कन्वर्स करे और जो y नोड है वो अपने का y0 तक कन्वर्स करे। ये चीज़ याद रखना है, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर यहाँ पे कन्वर्जन सीक्वेंस से कन्वर्स कर दी Z0 तक, देन सब सीक्वेंस भी कन्वर्स करेगी Z0। A sequence converges if and only if f sequence is called
What is meaning of compact? Compact means close and bounded. Compact मतलब finite भी आप यूज़ कर सकते हो. That is hence Borel theorem that every closed and bounded set is compact. यहाँ में देखो, if a set S of a subset complex plane C, then the following statements are equivalent. S is closed and bounded, S is compact, and every infinite subset of S has a limit point in S, and every sequence in S has a subsequence that converges to point S. अब एक इसमें यहाँ पे कि ये बाउंडेड है कि नहीं. तो यस, दिस इज बाउंडेड. एंड व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए? सो एवरी पॉइंट ऑफ ए आर द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज क्लोज्ड. दिख रहा है, क्लोज तो है ही. ए इज नॉट क्लोज सिंस ऑल द लिमिट पॉइंट आर नॉट इन द ए, राइट? क्योंकि हर पॉइंट उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है. अगर कोई चीज़ उसकी बाउंड्री पे लाई कर रही है तो लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता. बाउंड्रीज पे जो पॉइंट है वो कभी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाएंगे तो उसका नेबरहुड कुछ पॉइंट है जो इसके बाहर भी है. तो दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड. इस टाइप का सेट है जिसका लिमिट पॉइंट हमें दे रखा है 0, राइट? एंड दिस इज़ हमेशा इस वाले में यही टर्म आती है कि जेड लेस देन 2 तो हो गई, तो इट इज़ बाउंडेड तो है क्योंकि हमें 2 तो मिल ही रहा है. इससे सारी लेट्स होगी सारी वैल्यू. एंड इसका ओनली लिमिट पॉइंट क्या होगा? जेड बराबर 0, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ सेट इज़ नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड. ओके, एंड इज़ नॉट कनेक्टेड. ओके, नाउ कम टू द एनालिटिक फंक्शन. Equivalent to regular, holomorphic, all things are same. Analytic function is that कि सिंगल वैल्यू फंक्शन यानी वन फंक्शन, ठीक है? और मल्टी वैल्यू फंक्शन मतलब मैनी वन फंक्शंस, जिसकी अंडर रूट जेड. एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल्स. देखो, लिमिट की एक बहुत ही बढ़िया लिमिट के रेफरेंस में एक चीज़ याद करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ in which z approaches to z नॉट. ये रिजल्ट मेरे आगे काम आएगा कि जहाँ पे मैं x को रिप्लेस करती हूँ 1 से और y को रिप्लेस करूँगी m से. अगर एक क्वेश्चन में कहीं भी h बन जाता है तो जो लिमिट होगी वो m पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड करेगी, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. फंक्शन आया है z बराबर z0 और z की जगह z0 रख रहे हैं तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा z बराबर z0 स्क्वायर. एक लिमिट है. सारे रिजल्ट्स ध्यान रखो ऐसे कि 3z4 है, पावर 4 है और कुछ ऐसा आ रहा है जेड माइनस आयटा 4 प्लस 4 आयटा. फंक्शन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है. z0 आयटा पे वैल्यू निकालने को फंक्शन की, है ना? मतलब 0 पे, और आप निकाल लो 0 पे तो 0 हो जाएगा. आयटा पे देखो, आयटा पे वैल्यू 0 हो रही है और इस पर -1. सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. सबसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तब होता है कोई फंक्शन जब उसकी रेडियस थ्रू आउट सेम है, ठीक है? यहाँ पे हम कंटिन्यूस तो बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है? लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी जब वो रेडियस अपनी सेम रहे. देखो, कोई फंक्शन है, ये W रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो, इसको ऐसे समझो कि जो इनपुट है वो Z है और आउटपुट है W. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है W क्योंकि आउटपुट है, और ये आउटपुट अगर कंटिन्यूस है और ना कम्पैक्ट सेट. कम्पैक्ट मतलब क्लोज एंड बाउंडेड. सो देन एफ जेड मतलब दिस फंक्शन की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको मॉड्यूलस जेड क्या है? बेसिकली फंक्शन की ओरिजिन से डिस्टेंस है. अटेन द मैक्सिमम और मिनिमम ऑन ई. मिनिमम भी सकती है, मैक्सिमम भी सकती है, डिपेंड किस पे कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए पहले तो, राइट? कम्पैक्ट मतलब क्या? बाउंडेड है, तो बाउंडेड तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक एग्जिस्ट करेगी. अगर एफ जेड कंटिन्यूस है ऑन अ कम्पैक्ट सेट में तो एफ जेड इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए. द रेडियस इज थ्रू आउट सेम इन अ क्लोज सर्कल. डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि इनपुट में जो चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? जो
मतलब कुछ जेड नॉट पॉइंट है, उस जेड नॉट पॉइंट पे आउटपुट निकाल रहे हैं और उससे थोड़ा सा बढ़ के आउटपुट निकाल रहे हैं, वही तो चेंज है। मतलब उसमें आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या उसकी डिफरेंशियबिलिटी, मतलब उसकी स्लोप में क्या चेंज आ रहा है। तो ये क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन है, जड़ की पावर n वाला, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एनीवेयर एवरीवेयर, तो यानी चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो ऑलवेज क्या डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे repeat the three properties. If any function is differentiable then it is definitely continuous, but it is not necessary. If it is a continuous then it is differentiable or not we cannot say, but if it does not continuous function, that it does mean it is not differentiable function definitely. This question repeated so many times in RPSC exams, especially first grade, second grade. This is that z square. Z square is what basically modulus z is a distance from origin and its square is x square plus y square. ठीक है, and this function is continuous everywhere because distance is continuous, but its radius, its derivative, its slope exists only at origin, right? Differential function, its derivative exists only on origin. Remember this. It is an analytic function or a holomorphic function or a regular function. Three of them is same. Analytic function होता है कि डोमेन में मेरे कोई पॉइंट है, उसके रिगार्डिंग जितना भी नेबरहुड है उस सब में वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, तो वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो कि एनालिटिक फंक्शन इज रिगार्डिंग टू वन पॉइंट। ठीक है, 1.1 सर्कल, उस सर्कल के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो एनालिटिक हो गया। बट एंटायर फंक्शन इज दैट देयर लाइक सो मैनी सर्कल्स, ठीक है, सो मैनी लिमिट पॉइंट्स, उसके रिगार्डिंग सारे नेबरहुड में वो फंक्शन थ्रू आउट द एंटायर है, थ्रू आउट द डिफरेंशिएबल है, तो उसको बोलते हैं एंटायर फंक्शन। एज वी सीन कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर x square plus y square is differentiable only at the origin. This function is continuous but not differentiable, so we cannot say it is analytic, so it is not analytic anywhere. This function f(x) बराबर x square y square is differentiability, differentiable है फंक्शन, इसके सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, बट हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि ये एनालिटिक है, ये एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल होने वाला डिफरेंशियल के साथ कंटिन्यूटी कंडीशन भी होनी चाहिए साथ में, बिकॉज एक्स की जगह पे 1 रिप्लेस करो, वाई की जगह पे m रिप्लेस करो, तो ये फंक्शन डिपेंड हो जाएगा m पे, मतलब पाथ कनेक्टेड हो गया ये, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जबकि हमें पता है कि जो लिमिट होती है हमारी जहाँ पे वो कन्वर्स कर रहा है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ नहीं आ रहा, मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एंड दिस फंक्शन इज एफ जेड बराबर 1 माइनस जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट द जेड बराबर 1, तो जेड बराबर 1 सिंगुलरिटी आ गई है, एक हिसाब से देखेंगे तो सिंगल पोल है सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर 1 का। जहाँ पे कोई भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। देखो अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो वो डेफिनेटली सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो एनालिटिक होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम एनालिटिक है नहीं कह सकते, लेकिन अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा तो एनालिटिक तो नहीं होगा। एंड व्हाट इज सीआर इक्वेशन? मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स याद रख लो, यहाँ पे लिख लो ux, यहाँ पे लिख लो uy, यहाँ पे लिख लो vy vx, यहाँ पे लिख लो vy। अब ये हमेशा ऐसा होता है a b माइनस b, तो अब देख लो ये कोऑर्डिनेट्स है वो आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं फंक्शन क्या है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और इसको डायरेक्ट लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पे मेरा होगा कि ux बराबर by एंड vx बराबर माइनस vx बराबर क्या हो जाएगा, uy।
Necessary condition means if this is analytic then definitely satisfy the CR equation. एनालिटिक है कहाँ पे? इसके डोमेन में, मतलब कि जेड वैल्यू पे. वैल्यू मीन्स इनपुट. एक स्टेट पर फंक्शन दे दिया कि इमेजनरी पार्ट इक्वल टू आयता जेड है. देन यहाँ पे और भाई यहाँ पे एम बच जाएगा. एम मतलब पाथ कनेक्टेड है, और पाथ कनेक्टेड होकर एनालिटिक तो नहीं होगा ये. तो हमारा जेड स्क्वायर जब एनालिटिक नहीं हुआ तो जेड के बराबर 4 कैसे एनालिटिक होगा? ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम बोल सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता. एक ये देख लो भैया, अंडर रूट वैल्यू है एक्स एंड वाई, ठीक है. सेटिस्फाई द कॉची-रीमान इक्वेशन एट ऑरिजिन बट इट इज़ नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट बिकॉज अगेन पाथ कनेक्टेड आ जाएगा. सो दिस इज़ नॉट एनालिटिक बट सेटिस्फाई रीमान इक्वेशन एट ऑरिजिन. सो दिस इज यू शुड रिमेंबर. ये एम बोलते हैं ना बाद में कि पाथ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए एम, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि लिमिट हमारे पास 1 होनी चाहिए. अगर मान लो एम की हम डिफरेंट वैल्यू लाएंगे तो लिमिट तो बहुत सारी हो जाएगी हमारे पास, वो हमें नहीं चाहिए. तो लिमिट हमारी कैसे होनी चाहिए? यूनिक. एफिशिएंट कंडीशन मेरी क्या है कि अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब जाके कहीं पे वो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर सो इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर. अब देखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन कि हमें दूसरों में अच्छा ये दिखाई देती है और खुद में बुराइयाँ. तो यू आर वन अपॉन आर वी थीटा. सिंपल. वी आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर यू थीटा, राइट. द पोलर इक्वेशन यू आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वी थीटा एंड वी आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर यू थीटा. तो कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, मतलब आउटपुट का डेरिवेटिव चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट. मतलब इनपुट में बदलाव के साथ आउटपुट में क्या बदलाव आ रहा है. अगर हम इसे आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकाल रहे हैं हम बेसिकली, मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है. तो कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा इज रेगुलर, मतलब ये तो रहेगा हमेशा, सत्ता ही एक तरह से. और चेंज क्या हो रहा है? डब्लू अपन जेड आर, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें. और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या माइनस आईटा आगे नहीं आएगा? तो माइनस आईटा बाई आर आगे आ जाएगा. एंड ये सत्ता इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बस ये होता है कि अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो माइनस आईटा बाई आर आगे आ जाता है. तो फॉर्म आई कैन राइट इट कैन रिटन इज e की बराबर माइनस आईटा थीटा डी डब्ल्यू डी आर, e की बराबर माइनस आईटा थीटा डी डब्ल्यू डी थीटा, बट माइनस आई अपॉन आर इज ऑल्सो कम हियर. इट इज़ द हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल मतलब हर एक रियल वैल्यूज पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है. मतलब एक्स और वाई रियल वैल्यू डिफाइन ऑन डोमेन डी कंटिन्यूस रियल फंक्शन है. उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे? उस डोमेन के अंदर इफ़ इट इज़ अ कंटिन्यूस. सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इट शुड बी ज़ीरो विद, देखो हमेशा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है विद इट इज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है. बट द सेकंड डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंट एज अ कर्व, कि कर्व में क्या चेंज आ रहा है, मतलब कर्व किस तरीके से बदल रहा है, वो क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव. फिर क्या हो गया? ज़ीरो. तो क्या हो गया? हार्मोनिक फंक्शन है. क्या बोलते हैं? लैप्लेस इक्वेशन थ्रू आउट द डी. कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो एनालिटिक है, पहली कंडीशन है कि वो एनालिटिक होना चाहिए. उसके बाद यू एंड वी हार्मोनिक फंक्शन हो सकते हैं. हार्मोनिक फंक्शन रिप्रेजेंट इट्स द कंजुगेट फंक्शन. हार्मोनिक कंजुगेट जैसे यू एक्स. बेसिकली मेरे को क्या करना है कि सी आर, अगर मेरे को कभी भी कंजुगेट पार्ट्स निकालने हैं तो मैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दूँ. जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, जो मैच खा जाएगा वो मेरा कंजुगेट पार्ट होगा. अब फिर भी डायरेक्ट क्या रखते हैं? कुछ डायरेक्ट कि यू बराबर क्या जाएगा? कॉस एक्स और कॉस एच पाई जो है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साइन एक्स अपन साइन एच पाई. हेयर इसका कॉन्जुगेट. ये तो आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया एक्स क्यूब माइनस 3 XY स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा? इसकी जगह वाई क्यूब कर दो, रिवर्स कर दो. 3 YX स्क्वायर माइनस वाई क्यूब
दिस इज़ द हार्मोनिक फंक्शंस, उनका डबल डिफरेंशिएशन करके देखना ना, जीरो हो जाना चाहिए। थर्ड है मिलन थॉम्पसन मेथड, इससे हम पूरा फंक्शन निकाल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है एक्चुअल में। हमें ये करना है कि सब जो भी हमें गिवन है, वट एवर इज़ गिवन, हमें यू ही दे रखा होगा जनरली, तो हम क्या करेंगे कि उसका सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। एक्स की जगह पे हम जेड डाल दें और वाई की जगह पे ज़ीरो डाल दें, ठीक है। एंड वट एवर इज़ कम वी शुड इंटीग्रेट दैट, और जो भी हमें इंटीग्रेट करने में मिलेगा दैट इज़ द फंक्शन। हमको ये वाला फंक्शन निकालना था कि u बराबर ई एक्स कॉस वाई वाई साइन बाय, राइट। बेसिकली इसका फंक्शन निकल के आता है जेड क्यूब, ये निकल के आता है जेड ई की पावर जेड। इज़ वेरी फेमस, डायरेक्ट लर्न इट। बढ़िया सा प्रूफ दे रखा है कि अगर एफ जेड मॉड्यूलस एफ जेड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम आउटपुट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कांस्टेंट है इन अ रीजन ऑफ एफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर इनपुट एनालिटिक है पूरा, तो याद रखना है कि जो इनपुट की डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। एफ जेड इज ऑल्सो कांस्टेंट। देखो एक बढ़िया फेमस क्वेश्चन बता रहा हूँ, बार बार रिपीट होता है कि लिमिट निकालने मेरे को जेड टेंडिंग टू जीरो टू, ऊपर जेड कॉन्जुगेट है, नीचे जेड है। हमें को हमेशा ऐसे फंक्शन के लिए ये देखना है कि अगर डी डिफ्रेंसिएशन कर दो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जेड वार, अगर ये फंक्शन ज़ीरो आ जाता है तब तो डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक हो जाएगा। और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे इसको तो क्या आएगा, वन बाई जेड, और वन बाई जेड में आप जेड के लिए ज़ीरो डालोगे तो फंक्शन हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक रीज़न है लेस देन मतलब कि ओपन स्फीयर एक तरह से, और मेरे को दे रखा है कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो अब बताना है बेसिकली कि क्या को यूनिफॉर्मली कर इस सर्कल ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वेदर एफ जेड बराबर 1/z इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ओके रिमेंबर दिस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एफ जेड बराबर जेड बार which is also not differentiable because we differentiate with respect to z bar, then it's give you 1 not 0 and it should be 0, तभी जाके क्या होगा differentiable. This question is also repeated so many times in RPSC where sine and cos hyperbolic function इन कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है आपको, तो ये फंक्शन याद रखना है कि कंटिन्यूस भी है और एनालिटिक भी है एवरीवेयर। फंक्शन है जैसे ई एक्स बराबर कॉस वाई प्लस आल्टा वाई, तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अंदर वाला भी एक्सपोनेंशियल है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज होलोमॉर्फिक एनालिटिक एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, राइट। सो डेरिवेटिव इज डेफिनेटली ई की पावर जेड, और ई की पावर जेड का डेरिवेटिव तो ई की पावर जेड ही होता है, राइट। वी कैन राइट इट इज ई एक्स प्लस आल्टा वाई एंड दैट इज ई की पावर जेड, ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन इज ई की पावर जेड, राइट। देखो इफ लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट इट मीन्स डेरिवेटिव इज़ नॉट एग्जिस्ट। आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस में एक्स की जगह पर 1 रखो, वाई की जगह पर एम रख दो। अगर एम बच जाता है, एम कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसका मतलब पाथ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रही लिमिट, इसका मतलब है लिमिट अलग अलग आएगी, और लिमिट क्या होती है यूनिक, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब है इसकी जीरो पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, बट हो सकता है कि जीरो पे ये सारे क्वेश्चन सेटिस्फाई करवा दे। तो ये तो आइडियल एग्जाम्पल है, ध्यान रखो कि इस टाइप का जो आ जाए, नीचे एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है, ऊपर एक्स क्यूब वाई क्यूब दे रखा है, एक तरफ 1 प्लस आइट है, एक तरफ 1 माइनस आइट है, दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड सी आर क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट डज नॉट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन। अनदर एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर बाय 5, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, एक्स की जगह 1 वाई की जगह एम बचेगा, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट डेरिवेबल, दिस इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन, बट मे बी इट नॉट बी पॉसिबल टू सेटिस्फाई द सी क्वेश्चन एट ऑरिजिन। पूरे फंक्शन को अगर एनालिसिस करोगे, मान लो जेड की ई के 1/z के 4, और जेड की वैल्यू मैंने 0 डालते ही हो गया इन्फिनिटी, और ई के और माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये पूरा फंक्शन 0, तो इसका डेरिवेटिव होगा कैसे। सो दिस इज़ नॉट एनालिटिक एट 0 बट सेटिस्फाई सारे questions, the same questions. This is also not analytic, and maybe it possible it satisfy सारे question at origin. Remember some formulas कि अगर रियल पार्ट का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और आगे लगा दो 2, बट फुल फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं,
4 आगे लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्क्वायर। डेरिवेटिव पूछता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, साइन एक्स का कॉस जेड लॉग जेड का 1 जेड साइन इनवर्स जेड का 1 अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या है 1 प्लस जेड अपन 1 माइनस जेड देन डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या है 2 अपन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है u माइनस वी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर वाई को देगा 2 कॉस एक्स ई की पावर वाई ई की पावर माइनस वाई का फंक्शन 1/2 माइनस 1/2 कॉट जेड बाई 2 बनाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो कि यू एन ये एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, जेड बराबर दिया हुआ है, यू माइनस वी करते हैं अपन ई एक्स और ये क्या होती है ए की पावर वाई, इसके फॉर्म में तो एक्स प्लस वाई ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर जेड बन जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करें एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड निकाल रहे हो तो ए की पावर जेड ही आएगा। चलो देखते समझ जाओ ए की पावर जेड ही आना है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डबल डिफ्रेंसिएशन करते हो एक तरीके से, ठीक है, बट यहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड दैट्स व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू जीरोस लाइक 4 जेड स्क्वायर जेड डी जेड ऑन डी जेड बार। तो यहाँ पे दिया होने हुआ कि फंक्शन एनालिटिक है, जब फंक्शन एनालिटिक होता है तभी जाके हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है 0। आपको जो है log f डैश जेड तो इट गेट इंक्रीजिबल बिकॉज दिस फंक्शन इज एनालिटिक डेरिवेबल एवरीवेयर। इसका कॉन्जुगेट निकालना है कि यू एक्स वाई का, तो एक्स वाई का कॉन्जुगेट कैसे निकाल, ये फंक्शन दे रखा है ई के माइनस एक्स में दे रखा है, तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। मतलब कि क्या करना है, सबसे पहले साइन चेंज हो जाएगा, सबसे पहले माइनस की जगह हो जाएगा प्लस और कॉस, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन। ठीक है, दूसरा मेरे को यू दे रख, ये मेरे को निकाला इसका कॉन्जुगेट अगर इन केस, और यू एक्स वाई का कॉन्जुगेट हाफ लॉग एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट ये होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, राइट। तो भी वो थोड़ा हटके भी है और इम्पॉर्टेंट भी लग रहा है, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और tan इनवर्स वाई इनवर्स एक्स का निकालना हो तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कॉस वाई का चाहिए क्या बन जाएगा ई एक्स साइन वाई। हमें कोई फंक्शन निकालना है तो ये ई और जो कॉस वाले फंक्शन होते हैं मैक्सिमम ई के पावर जेड ही होता है इनका आंसर, ये फंक्शन ई पर जेड बन जाएगा। इसका तो कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले, तो ये भी याद रखो जैसे ऊपर साइन 2x दे रखा है नीचे कॉस 2x दे रखा है, फिर ये दे दिया, अभी क्या बन जाएगा 2 cos h स्क्वायर वाई बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर निकालना है तो ये देख लो कॉट जेड के फॉर्मेट में बनेगा हाफ आई प्लस 1 प्लस आटा की सिंगुलरिटी बन रही है। तो एन इज़ अ रियल और फंक्शन दे रखा है स्टेप का क्या पावर एन कॉस एन थीटा, मतलब ई की पावर आटा एन थीटा है। और मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाहती हूँ तो क्या बनेगा डिफ्रेंसिएशन, ये बनेगा एन आर, सबसे पहले आर एन का डिफ्रेंसिएशन होगा एन आर एन माइनस 1 और जो थीटा है उसमें से एक कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा एन माइनस 1 और एन माइनस 1 थीटा, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ ले, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वही है जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। अभी एक पहला फंक्शन पूछा है तो यहाँ पे देख लो -1 प्लस आइट माइनस 1 माइनस आइट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कॉट जेड साइन अपॉन सॉरी कॉस अपॉन साइन करते हो तो साइन कहाँ पे 0 होता है के वाई पे, कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। 1 अपॉन सेट जेड तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 तो है ही, और सेट जेड का क्या होता है कि और पाए पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जहाँ जहाँ पे कॉस 0 होता है वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरी वैल्यू है tan h जेड जेड स्क्वायर प्लस आयटा, तो प्लस माइनस आयटा है जहाँ पे फंक्शन 0 होगा। दूसरा tan का होता है साइन अपन कॉस, फिर सारे और π/2 पे ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड अपन जेड की पावर 4 + 1 कंटिन्यूस दे रखा है एट ऑल पॉइंट, ये जेड स्क्वायर माइनस आयटा जेड स्क्वायर प्लस आयटा बन रहा है, तो कंटिन्यूस ऑल इनसाइड द यूनिट सर्कल एक्सेप्टेड द 4 पॉइंट, क्योंकि ये 4 पॉइंट तो है, राइट। मान लो ये फंक्शन को कंटिन्यूस दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले वैल्यू निकालूँ, वैल्यू मेरी क्या बनेगी 2/1, ठीक है। तो 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूस आ गया ना, 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है, 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है, और मेरे को सर्कल दे रखा है z/2, तो ये डिसकंटिन्यूस के बाउंड्री पे होगा, z/2 को डिसकंटिन्यूस है नहीं, सर्कल के अंदर कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 तो सर्कल के अंदर आ रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कम, राइट. इफ दैट काइंड ऑफ लीनियर फंक्शन इज गिवन देन दैट इज द कंटिन्यूस ओवर डिस्टेंस. ऐड कर लो, 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ दिस जेड लेस देन 10 थोड़ा सा यूनिक ही है कि ओपन रीजन में, ओपन एंड बाउंडेड रीजन में लीनियर फंक्शन डिफाइन हो रहा है. यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है 1/z², राइट. 0 डाल लो, हो जाएगा. कंटिन्यूस नहीं है तो जेड 1 से छोटे पे किस तरीके से कंटिन्यूस हो सकता है. दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. बट इसकी वैल्यू 1/2 से और 1 तक यूनिफॉर्मली क्या हो सकती है, कंटिन्यूस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है. ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का हाफ से लेके 1 तक, क्योंकि 0 पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस. पॉलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर. टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो क्या होता है भाई, ux और uy कितना ही दे दो, जब तक m बचेगा तब तक वो कभी भी एनालिटिक तो होगा ही नहीं. हो सकता है वो ओरिजिन पे सीआरटी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दे. है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, अगेन एक्स वाई, जब भी चीज़ें प्रोडक्ट में आएंगी m तो बचेगा. इस मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूस बट इट्स नॉट एनालिटिक. हार्मोनिक फंक्शन देती है तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था भाई, y की जगह क्या कर दो, x कर दो, और इसकी जगह कर दो 3xy². ठीक है, और ये हार्मोनिक फंक्शन बनेगा क्या, आई जेड की और क्यूब फंक्शन बनेगा. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसी हो कि लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक होती नहीं हो. लेकिन अगर वो एनालिटिक है तो वो लैपलेस इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई कर देगी. ठीक है, एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन कि यू मेरे को दे रखा है x² - y², ठीक है, वी दे रखा है -y/x² + y², देन both satisfy the Laplace equation but that is not an analytic function. ये क्वेश्चन तो DSS में PGT में आया हुआ है. अगर u - v गिवन है तो मैं x - y के फॉर्मेट में पूरा हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है. ये x² + 4xy y², इसकी वजह ये एनालिटिक फंक्शन है. एक तरीका तो ये है कि मैं इसको मिलन थॉमसन मेथड से कर दूँ. मिलन थॉमसन मेथड ये होता है कि सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, फिर इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, दोनों का ऐड करो. ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, और x की वैल्यू रखनी है z रख दो, और y की वैल्यू रख दो 0. ठीक है, तो उस तरीके से जो फंक्शन आएगा वो मेरा आंसर है. फिर फंक्शन की वैल्यू मैं डायरेक्ट याद रख लूँगी, है ना, तो -i/z³. ओके, फंक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम में कि u की वैल्यू दे रखी है मेरे को sin 2x, नीचे दे रखा है cos h2 बाय, नीचे दे रखा cos 2x. तो इस टाइप के जो फंक्शन होता है वो क्या बनेगा, tan z. रिमेंबर इट. क्वेश्चन भी मिलन थॉमसन मेथड से होगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर याद रख रही हूँ. इसका ऊपर sin x 2x है, cos 2x है, और cos h2 बाय का तड़का लगा दिया इसको, तो tan z आएगा. एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फंक्शन u + आयोटा y एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है z का, और u - v की वैल्यू दी हुई है, अगेन ई वाई ऊपर, cos h y नीचे भी दे रखा है, लेकिन ऊपर क्या कर दिया, अभी ये एक्स्ट्रा जोड़ा है, y - cos x, और प्लस की जगह माइनस कर दिया. यहाँ पे f π/2 की वैल्यू और दी हुई है. अब इन सब चीज़ों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. मेरा जो आंसर आएगा, जो भी वैल्यू दी हुई है, 3 को हटाओ, i/2 दिख रहा है, i/2 है, 1 और लगा दो, 1 - i/2 प्लस cot z/2. ओके, राइट, जस्ट टिक द आंसर. सिमिलर टू समवट सिमिलर लाइक दिस, 3 की जगह 1 है, इसकी जगह क्या है, cot z/2. हो सकता है आपसे कि ये जो z बार वाले फंक्शन होते हैं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर. बहुत फेमस क्वेश्चन है z² इस टाइप का फंक्शन है. मॉड्यूलस नहीं दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट z² दे रखा है. कंटिन्यूस एवरीवेयर एनालिटिक, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मार्क लगाना है तो कुछ भी लगाना है तो लगाओ. z² है, दैट इज़ एवरीवेयर एनालिटिक. 1/z क्योंकि 0 पे एनालिटिक नहीं होगा, और ये जो मॉड्यूलस z² है ये भी 0 पे एनालिटिक नहीं होगा. क्वेश्चन में क्या है, एनालिटिक डिफरेंशिएबल है ऑल 3. कि f(z) mod conjugate is not analytic anywhere. Remember this, because by this method we have to
हमें क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है जेड वाले रेस्पेक्ट में, 0 आ जाना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन है, 0 नहीं आता तो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा।